जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आवाज आप तक में। जैसा कि आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद है रानी रासमोहनी रोड में। रासमोहनी रोड में आने का खास वजह ये रहा, जैसे कि हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ तृणमूल कांग्रेस का झंडा अभी से लगना शुरू हो चुका है। जबकि ये झंडा लगने का खास वजह भी हम आपको बता दें, कल 30 तारीख है, यानी कि तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के जानिब से एक प्रतिवाद सभा का आयोजन होने वाला है। साथ ही हम आपको ये भी बताते चले, इस वक्त हमारे बीच तृणमूल कांग्रेस के काफी सारे माइनॉरिटी के काफी सारे कार्यकर्ता इस वक्त मौजूद है। हम उनसे भी बात करेंगे जो कल 30 तारीख है, कल एक प्रतिवाद सभा का आयोजन किया है वक्फ बिल के खिलाफ। आइए उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आने वाले 30 तारीख को लेकर क्या कहना है उनका। ওয়াকফের অ্যামেন্ডমেন্ট বিল যেটা স্বৈরাচারী মোদি সরকার নিয়ে এসেছে, এতে আমাদের বাপ দাদাদের সম্পত্তি যেগুলো ওয়াকফে দান করা হয়েছে সেইগুলো সমস্ত বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে এবং এটা গভর্নমেন্ট প্রপার্টি হয়ে ওখানে মন্দির বানানো হবে। কেননা ওয়াকফ প্রপার্টি যদি কিছু প্রবলেম হয় তখন ট্রাইব্যুনালে যেতে হয়। সেই ট্রাইব্যুনালের একজন মেম্বার ওয়াকফ বোর্ড থেকে থাকে, আর 2-3 জন মেম্বার সংখ্যালঘু মানুষ থাকে। এখন যেটা করেছে, কোনো ট্রাইব্যুনাল হবে না, সমস্ত কিছু বিচার করবে মানে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট আইএএস অফিসার। সংখ্যালঘু মানুষ খুব কম আছে, সুতরাং এই ওয়াকফ বোর্ডগুলো যদি এই নতুন আইনটা পাস হয়, অ্যামেন্ডমেন্ট বিলটা, তাহলে সংখ্যালঘুদের সম্পত্তির অধিকার যেটা আমাদের বাপদাদারা দিয়ে গেছে সেটা আর থাকবে না। প্লাস আগামী দিনে যদি ওয়াকফ করতে হয়, আপনাকে 5 বছর নামাজ পড়তে হবে, টুপি পরতে হবে, দাড়ি রাখতে হবে, হজ করতে হবে, তবে আপনি ওয়াকফে প্রপার্টি দান করতে পারবেন, নাহলে পারবেন না। এটা সব ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। তো এই সবগুলো আছে, যার জন্যে আমাদের নেতা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় যে ওয়াকফ বিলটা যে কমিটিতে আছে, সেই কমিটিতে ঝগড়া করে বোতল ভেঙে জগদীম্বিকা পালকে মারার চেষ্টা পর্যন্ত করা হয়েছে। তারপরে টাইমটা বেড়ে গেছে, ওদের ইচ্ছা ছিল শীতকালীন অধিবেশনে পাস করে নেবে বিলটা। এখন কমিটিতে থাকবে, কমিটি সমস্ত চুলচেরা বিচার করে প্রত্যেকটা জিনিস দেখে সমস্ত সংখ্যালঘুর যে অধিকার তাকে বজায় রেখে তারপর সেটা পার্লামেন্টে পাঠানো হবে। এর জন্যে বাংলায় লড়াই করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আর তার কথায় এবং তার আদেশে লড়াইয়ের প্রথম সারিতে রয়েছেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইনস্ট্রাকশানে আগামীকাল যে প্রোগ্রামটা হতে চলেছে, সেটা ফিরহাদ হাকিমকে ইনস্ট্রাকশান দেয় যে একটা প্রতিবাদ সভা হওয়া দরকার। সেই উদ্দেশ্যে আগামীকাল আমরা যে প্রোটেস্ট ওয়াকফ অ্যামেন্ডমেন্ট বিলের এগেনস্টে ওয়েস্ট বেঙ্গল তৃণমূল কংগ্রেস মাইনরিটি সেল এই প্রোগ্রামটা করছে, যার নেতৃত্বে আছে ফিরহাদ হাকিম, মোশাররফ হোসেন, এনাদের নেতৃত্বে এইটা হচ্ছে। আর আমার ব্যক্তিগত ধারণা, কারণ আমি দক্ষিণ কলকাতা জেলা তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি হিসাবে গত 7 দিন 10 দিন ঘুরে যা আমি অনুভব করলাম, বিভিন্ন জেলার সাথে যোগাযোগ করে, একটা ঐতিহাসিক সমাবেশ হবে। তবে আমার যা মনে হয় এই জায়গাটা ছোট হয়ে যাবে, আর একটু বড় জায়গা করলে মনে হয় বেটার হতো, কিন্তু এখন তো আর কিছু নেই। আর আজকের যে আগামীকাল যে অনুষ্ঠান হতে চলেছে, তার চেয়ারম্যান আছেন ডক্টর এম এ কাসেম, আর আমাদের পুরো টিম সবাই মিলে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের যে টিমটা রয়েছে, যে অফিস বেয়ারার্স আছে, সেক্রেটারি আছে, প্রেসিডেন্ট আছে, তারা সবাই একত্রিতভাবে আমরা মন প্রাণে চেষ্টা করছি, লড়াই করছি, যাতে করে এই বিলটাকে স্টপ করা যায়। আর শুধু এটা আমাদের শেষ না, যদি এটা না হয় আগামী দিনে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে যাব। আমাদের এখন স্টেজ শুরু হবে পুলিশের পারমিশন ছড়া থেকে, তারপরে আমাদের আদার্স যে কাজ আছে সাজানো, সেটাও শুরু হবে। আমি আশা করব ইমরান সাহেব হয়তো আপনাদের বলেছে, আপনারা কিছুক্ষণ থেকে আমাদের অ্যারেঞ্জমেন্ট একটু দেখে गए पब्लिक काছে এটা তুলে ধরলে আমার মনে হয় ভালো হয়। देखिए, पूरे देश में
किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई, न सीए एनआरसी को लेके किसी भी बात के लिए नहीं। तो वक्फ को बोर्ड के लिए भी मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री बंगाल की जो हमारी चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, उनके सिवा और किसी ने अभी तक आवाज़ नहीं उठाई है। कल 30 तारीख रानी रासमुनी में 11 बजे मैं अपील करूंगी कि जितने भी पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, जिनको भी दर्द है कौम से, सिर्फ यहाँ कौम की बात नहीं है, बात है कि जो लोग भी सेकुलरिज्म पे विश्वास करते हैं उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचना चाहिए। क्योंकि देखा हमने कि किसानों ने अपने हक के लिए लड़ाई की और 3 काला कानून को इस मोदी गवर्नमेंट को वापस लेना पड़ा। तो अगर आज हमारी बारी है तो कल ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो मनमाना जो हुकूमत चल रही है केंद्र की, उसको रोकने के लिए मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा हर एक लोगों को, हर एक तबके के, हर एक धर्म के लोगों को यहाँ पहुँचना चाहिए। और जहाँ बात है, ये कहते हैं कि ये वक्फ बोर्ड जो है किसकी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी मुसलमानों के द्वारा दान की हुई हमारे पूर्वजों ने की थी, ताकि गरीब लोगों की, उसमें मुसलमान भी हो सकता है, सिख ईसाई कोई भी हो सकता है, उसके लिए दान की हुई जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके ऊपर केंद्र की नज़र है ताकि वो उसको हथिया सके। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से पीएम फंड जब आया था, पीएम केयर फंड जब कोरोना के वक्त आया था, ये कहते हैं कि वो किसी भी उसमें नहीं आता, उसका कोई हिसाब वो नहीं देंगे, वो हिसाब नहीं देंगे। जब पीएम केयर फंड का हिसाब नहीं हो सकता तो वक्फ बोर्ड के ऊपर इनकी नज़र क्यों है? इस बात के लिए हमें हमारी लड़ाई, और ये लड़ाई चलती रहेगी जब तक इस वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट बिल को वापस नहीं लिया जाता, और इसको हम पास किसी भी कीमत पे नहीं होने देंगे। जब तक मुसलमान जिंदा है, इस चीज़ के लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमारे साथ हमारी नेत्री भी है, उनका भी सहारा है, तो उनके लिए हम बहुत बहुत सारे मुसलमानों की तरफ से, महिलाओं की तरफ से मैं धन्यवाद दूंगी कि वो हर वक्त हमारे साथ ही हैं और रहेंगी। देखिए, कल का पहली बात तो ये एक जलसा नहीं है, ये हमारे कहीं ना कहीं अब हमारे राइट की फ़ाइट है, ठीक है। और इंशाल्लाह ये हमें एक दिन की फ़ाइट नहीं है, इंशाल्लाह ये जब तक ये बिल रुकेगा नहीं तब तक इस तरह के आपको बहुत सारे प्रोटेस्ट आपको देखने को मिलेगा। और इंशाल्लाह जब तक ये बिल वापस नहीं जाएगी, हमारी पार्टी की तरफ से इसका जोर शोर प्रोटेस्ट होगा, और आने वाले टाइम में आपको इस तरह के और भी प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे। इंशाल्लाह कल तो खैर आपको जो दिखेगा वो एक हिस्ट्री होगा, और इंशाल्लाह कम से कम नहीं भी हो तो 1 लाख पब्लिक तो इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। क्या आपको लगता है वक्फ बिल को लेकर टीएमसी काफी देर से जागी, क्योंकि यहाँ पर इसी जगह पर मुझे लगता है कि सबसे पहले जागी है हिंदुस्तान में। सबसे पहले अगर किसी को कोई पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी अगर पहली बार कोई आवाज़ उठाया है, वो तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी उठा रही है। सबसे बड़ी बात ये है। अब रह गया बाकी जो लोग कर रहे हैं वो अदारों की बात है, लेकिन पॉलिटिकल स्टैंड लेने के लिए जब तक पार्लियामेंट में चीज़ें सामने नहीं आती है, जब पार्लियामेंट खुला, उसका रोस्टर जब पार्टी को मिला, उसके रोस्टिंग में जो चीज़ आया है, उस चीज़ को देखते हुए पार्टी ने स्टेप लिया कि अब वक्त आ गया है कि हमें वक्फ बिल को लेकर एहतजाज करने के लिए रास्ते पे आना चाहिए। अब पहली बार ममता बनर्जी जैसी लीडर ने सोचा कि हम रास्ते में उतर के उसका फाइट करेंगे। 20 तारीख का साथी ऑल बंगाल इमाम मोहम्मद एसोसिएशन के आप खुद एक संपादक कार्यकर्ता है, तो टीएमसी को पूरा समर्थन कर रहे हैं, देखा जा रहा है। আমরা এই কারণে করছি যে এইটা হচ্ছে অস্তিত্বের লড়াই, আর হচ্ছে আমাদের যেটা আছে সমস্ত মাদ্রাসা, মসজিদ, খানকা, ঈদগাহ সব জমিনের উপর আছে, আর জমিনের কোটার পরে ওরা একটা এমন একটা অ্যাক্ট আনছে, অ্যামেন্ডমেন্ট আনছে যেগুলো খুবই খতরনাক। ফলে যেই সামনে এসে লড়াই করবে তার আমরা সাপোর্ট দিব। সে যে পার্টি কালার বলে নাই, তৃণমূল কংগ্রেস আমাদের মুসলমানদের হেমায়েত করছে, আমরা তাদের পাশে থাকবো। সেজন্য আমাদের অ্যাসোসিয়েশন থেকে কালকে অনেক লোক এখানে আসবে, আমরা সব বলেছি, দাওয়াত দিয়েছি। ঠিক আছে। देखिए, ये पूरे जोश और खरोश के साथ सिर्फ कलकत्ता की सरजमीन पर नहीं है, बल्कि पूरे मगरबी बंगाल के हर डिस्ट्रिक्ट में जो है वेस्ट बंगाल तृणमूल कांग्रेस मैटी सेल की तरफ से जो ये प्रोग्राम मुनक्कद की गई है, बहुत ही जोश और खरोश है। और इंशाअल्लाह ताला आप कल देखिएगा कि बहुत कामयाब प्रोग्राम होगा, क्योंकि ये बका की लड़ाई है। ये लड़ाई जो है हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ाई है। हुकूमत जो है मुसलमानों के हकूक़ को छीन लेना चाहती है, और पूरे हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ कि पहली मर्तबा जो है कोई पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और उनकी वज़ीर आला ममता बनर्जी ने हुक्म दिया है कि आप लोग जो है वक़्फ़ के लिए सड़क पे उतर जाइए। और कल आपने देखा होगा कि असेंबली में भी ममता बनर्जी ने साफ लफ्ज़ों में यही कहा है कि जिस तरह से बांग्लादेश में जो है हिंदुओं के ऊपर जुल्म हो रहा है, तो वो उनका मामला है, लेकिन हिंदुस्तान में जो है ये जो वक़्फ़ बिल है, ये किसी एक मज़हब को सताने के लिए, बिगाड़ने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए बिल लाई गई है।
तो इसको हम जो है ममता बनर्जी हर बात खुल के बोलती है और उन्हें साफ लफ्ज़ों में कहा कि मैं इस वक्त बिल को पास नहीं होने दूंगा। और उन्होंने ये करके दिखा दिया, उनके एमपी ने करके दिखा दिया है कि जेपीसी के मीटिंग में अपने हाथ को लहूलुहान कर दिया और जो है और तो और है कल मजबूर कर दिया है कि पूरी तरीके से जब तक बातचीत नहीं हो तब तक ये बिल जो है लागू नहीं होगी। पिछले एक हफ्ता से इसमें पूरा समझ लिए हमारे जो कल के जो मीटिंग है, हमारे चेयरमैन कल के जिम्मेदारी हमारे प्रेसिडेंट हमारे डॉक्टर कासिम साहब को दिया गया है। तो हम समझते हैं लाखों की संख्या में भीड़ होगी और हम लोग पूर्ण उम्मीद हैं, इसलिए कि हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने एक हक की लड़ाई के लिए आवाज़ उठाई है जो हमारे माइनॉरिटी से संबंधित है। तो ये हक की लड़ाई है जिस हिसाब से हमारे आबा व अजदाद ने हमें संपत्ति हमारे मुसलमान कम्युनिटी के लिए, ताकि हमारे लोगों ने जो दिया है। तो सरकार ये देखिए केंद्र में जो बैठी हुई सरकार है ये फेलियर सरकार है। आप देखे होंगे कि जितने भी भारत के धरोहर हर चीज़ को बिक्री कर रहे हैं, अगला नज़र समझ लिया हमारे जो वक्फ की संपत्ति उसको है, इसलिए वो हड़पना कर चाहते हैं। आने वाले दिनों में देखिए अभी क्या है, अभी क्रिश्चियन का भी समझ लिया कि बहुत ज़बरदस्त संपत्ति है। तो वो धीरे धीरे माइनॉरिटी को उसका चीज़ को हड़प लेने मांगते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल से कहूँगा कि हम लोग हक की लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं। हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने कल आदेश दिए हैं कि हम लोग 30 तारीख को एक ज़बरदस्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये तहरीक हम लोगों का ये चलते रहेगा और किसी भी कीमत पर हम लोग ये तहरीक को जब तक ये बिल को कैंसिल नहीं होगा हम लोग ये काम करते रहेंगे। और हमारे जो कल के जिम्मेदार है हमारे कासिम साहब, कल देखिए प्रधान वक्ता के हिसाब से हमारे मेयर कोलकाता के फिरहाद हकीम साहब रहेंगे और कल्याण बनर्जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेंगे और तमाम नेता वहाँ मौजूद रहेंगे। यहाँ तक के हमारे जो सभापति है मुशर्रफ हुसैन के नेतृत्व में ये ज़बरदस्त कामयाबी इंशाल्लाह होगी। देखिए सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश में पहला पार्टी है तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी जिन्होंने ऐलान किया कि ये प्रोग्राम माइनॉरिटी सेल हमारी लेगी। तो कल हम लोग 30 तारीख को यहाँ पर अपने लोगों के साथ आ रहे हैं। आज यहाँ तैयारी के सिलसिले में पूरे हमारे ऑफिस बेरर यहाँ खड़े हैं। साथ ही साथ कल असेंबली में हमारे बंगाल के मुख्यमंत्री ने इस बिल का जो अमेंडमेंट बिल जो है उसके ख़िलाफ़ में रेजोल्यूशन पास किया है। तो ये सबसे बड़ी बात है, देश के किसी भी स्टेट में इस तरह का रेजोल्यूशन कहीं लिया नहीं गया। तो ये हम समझते हैं कि पूरे देश के लिए एक दिशा दिखा रही ममता बनर्जी कि वक़्फ़ के लिए किस तरह लड़ाई की जाएगी सड़कों से लेकर असेंबली के अंदर में। तो हम इसके लिए और आवाम से चाहते हैं कि कल ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में 30 तारीख को ये हमारी बका की मामला है, ये मस्जिद मदरसा कब्रस्तान इसका मामला है, इसमें हम सबको साथ होना चाहिए। कल कितना भीड़ आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं? उम्मीद करते हैं, देखिए ये तो पूरे कम्युनिटी के लिए एक इज़्ज़त की बात है और जैसा कि हम सबको पता है कि हम लोगों की नेत्री, हम लोगों की सीएम ममता बनर्जी हम लोगों के साथ है और पूरे हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से ये पहली सीएम है जिन्होंने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाया है। तो ये एक डबल इफ़ेक्ट पड़ जाएगा और उम्मीद करते हैं कि इसमें लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर आएंगे। और कितना कल का जलसा कितना कामयाब होगा? ये आज का माहौल देखकर ही समझ में आ रहा है कि ये प्रोग्राम कामयाब होने वाला है, क्योंकि इस प्रोग्राम में हम लोगों के साथ हम लोगों के मिनिस्टर साहब जनाब फिरहाद हकीम साहब की सरपरस्ती है, वो हम लोगों के साथ में है, उनके गाइडेंस में हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं और दीदी का भी साथ है, दीदी के हिदायत के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये इंशाअल्लाह ताला काफ़ी हद तक ये कामयाब होगा ये प्रोग्राम। ये मिचिल नहीं है, ये अपने अधिकार की लड़ाई है, क्योंकि आज आप देख रहे हैं जिस तरीके से वक्फ को लेकर, वक्फ बोर्ड का लेकर जिस तरीके से हमारे केंद्रीय सरकार हमारे ऊपर एक के बाद एक आक्रमण कर रहे हैं। आज उनको सिर्फ मुद्दा चाहिए, मुद्दा इसलिए कि वक्फ बिल लाने का मकसद ही है कि हमारे देश का संविधान के ऊपर आघात करना। आज हमारा संविधान जिसमें हम लोगों को, हर जात पात के लोगों को, जो मजहब को एक लाने का कोशिश किया गया, हमारे देश को पहचान देने का, हिंदुस्तान का पहचान देने के लिए, लेकिन आज ये मोदी सरकार जो है ये बिल लाकर जो है हमारे जो वक्फ बोर्ड के जितने प्रॉपर्टी है उसके ऊपर कब्जा करी। यानी वक्फ बोर्ड का मतलब है हमारे मस्जिद, हमारे मदरसा, हमारे कब्रिस्तान, हमारे जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उन सब में अपने लोगों को ढुकाकर उसके ऊपर कब्जा करके हमारे अस्तित्व को, हमारे पहचान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और इसी के खिलाफ हमारी माननीय मुख्यमंत्री
ममता बनर्जी, इन्होंने उद्योग उठाया पहली बार। आप देख चुके हैं कि पार्लियामेंट में किस तरीके से कल्याण बनर्जी हमारे एमपी, उन्होंने आवाज उठाई है, यहाँ तक कि उन्होंने अपने आप को भी चोट पहुंचाया। किस लिए? क्योंकि वो ये वक्फ बिल के जो ये है उसके खिलाफ जो है इसका अमेंडमेंट जो करने की कोशिश कर रही है पार्लियामेंट में हमारी मोदी सरकार, उस सरकार के खिलाफ ये आवाज उठाई गई है। लेकिन आज दीदी हमारी पश्चिम बंगाल में जो है आज ये प्रतिवाद सभा के रूप में कल 30 नवंबर को जो है उन्होंने आह्वान किया है, जिसमें हमारे मेयर साहब, हमारे बहुत ही चहेते दिल अजीज हमारे फिरहाद हकीम, हमारे मिनिस्टर, हमारे मेयर, हमारे इस इलाके के जाने माने आप समझ सकते हैं कि उन्होंने ये कदम उठाया। और वो हमारे प्रधान वक्ता भी है, कल्याण बनर्जी भी प्रधान वक्ता कल प्रोग्राम में। और पूरे पश्चिम बंगाल में हम लोग सिर्फ माइनॉरिटी नहीं बल्कि सबों से ये अपील करते हैं कि आइए हमारे संविधान को बचाना है। ये सिर्फ लड़ाई एक माइनॉरिटी की लड़ाई नहीं है, ये हमारे संविधान की लड़ाई है। और इस संविधान को बचाने के लिए हम सबों को मिलकर निकलकर 30 तारीख को ये प्रोग्राम को रानी राजमनी रोड में हमारी माननीय ममता बनर्जी के साथ में हमारे एमएलए मुशर्रफ हुसैन और खास करके हमारे मेयर साहब, हमारे मिनिस्टर जनाब फिरहाद हकीम को इस प्रतिवाद सभा को आप लोग सक्सेस बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। जब से बीजेपी की सरकार सेंट्रल में आई है तब से तो यही राजनीति है, डिवाइड एंड रूल की राजनीति, और इसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। और यही वजह है कि वो मुसलमानों का सबसे बड़ा जो मुद्दा है वक्फ, उस पर वो हाथ लगाया है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम बंगाल की सरजमीन में रहते हैं जिसकी नेत्री ममता बनर्जी है। ये लड़ाई हमारी यही है, हमारी बका की लड़ाई है, ये हमारे वजूद की लड़ाई है। जब वजूद पे बात आ जाए ना तो एक भी जो है मुसलमान खामोश नहीं रहेंगे। और जब नेत्री ममता बनर्जी हो तो और क्या बात है। ये वाहिद ममता बनर्जी, ये वाहिद बंगाल है जहाँ विधानसभा में जो है इसके बारे में बात उठाई है। और ये बात कोई और नहीं बल्कि यहाँ की जो है सीएम ने उठाया है। तो ये इसे छोड़ने वाली नहीं है और हम इसके पीछे हैं और आखिरी दम तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे। और बीजेपी का जो मनसा है हम कभी उससे पे कामयाब होने नहीं देंगे। अगर ये बिल पास हो जाए, तृणमूल आखिरी वक्त तक लड़ाई लड़ेगी, आवाम के साथ है, बंगाल के लोगों के साथ है, माइनॉरिटी के साथ है, वो इसको कभी नहीं छोड़ेंगे। वो मर जाएगी लेकिन अकलियत को इसका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे।